गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर धमाकेदार, फर्राटेदार एंड मज़ेदार सेशन by Bhagwati Chaudhary. And today I am dealing with the chapter of class 12, that is endocrine system. This chapter is also included in class 10th. It means it is important for class 10th as well as for class 12th. And whenever we study about our body, it becomes more interesting. I think you all are ready. So let's start our topic, that is endocrine system. What is endocrine system? An endocrine system is a system which is made up of endocrine gland. And endocrine gland secrete the hormone. Endocrine system किसका बना हुआ है? endocrine gland का. endocrine gland क्या करती है? हार्मोन सेक्रीट करती है. ये चैप्टर आपके लिए, स्टूडेंट्स के लिए भी इंटरेस्टिंग है और ये उन लोगों के लिए भी इंटरेस्टिंग है जो साइंस की थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं. तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड पे. इंडोक्राइन सिस्टम किसका बना है? इंडोक्राइन ग्लैंड पे. जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई, थायराइड हो गई, पैराथायराइड हो गई, जो हम सभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं. इन ग्लैंड के द्वारा हार्मोन सेक्रीट किया जाता है. और हार्मोन क्या है? एक तरह से केमिकल मैसेज होता है. जैसे कि आपकी एक हो गई ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सेक्रीशन सीधा ब्लड के अंदर डाल देती है. ग्लैंड में हमने क्या बोला कि हार्मोन बनते हैं. हार्मोन्स आर सेक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड विदाउट एनी डक्ट्स, मींस डक्टलेस ग्लैंड. endocrine gland are ductless gland. They secrete directly into blood stream. Then next type of the gland is exocrine gland. We secrete their secretion with the help of ducts such as sweat gland, salivary gland, lacrimal gland. They are the exocrine gland. One gland, that is the pancreas, that is mixed gland. Nice question. Which gland is known as mixed gland? That is pancreas is mixed gland because it works as endocrine gland as well as exocrine gland. Then how the hormone works? Whenever the level of hormone decreases in the bloodstream, then a message is sent and the glands secrete their secretion into the blood. For example, when the blood level of the hormone falls, जब बॉडी के अंदर ब्लड के लेवल के अंदर हार्मोन, जैसे पिट्यूट्राइन हार्मोन की कमी होगी तो पिट्यूटरी हार्मोन सेक्रेट करेगी, या क्या होगा, हमारा ब्रेन मैसेज देगा कि आप हार्मोन सेक्रेट करिए, तब हार्मोन सेक्रेट होता है. और ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अंदर हार्मोन सेक्रेट करने के लिए उस ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलता है कि आप हार्मोन सेक्रेट करिए, तब वो ग्लैंड अपना हार्मोन सेक्रेट करना शुरू कर देती है. और हार्मोन क्या होता है? मैंने अभी बताया, दे आर जस्ट ए केमिकल मैसेज which are secreted by gland and directly secreted into the blood, and with the help of blood they are gone to their target organ. When blood level hormone increases, blood hormone, brain hormone stops. जब बॉडी के अंदर जो है ब्लड लेवल के अंदर हार्मोन ज़्यादा बन जाता है तो ब्रेन उस हार्मोन को सेक्रेट करने के लिए स्टॉपिंग मैसेज भी दे दिया जाता है. For example, you can see clearly a very beautiful picture. A gland which is known as mixed gland. Suppose in a blood there is level of the glucose decreases. First one condition, low blood glucose level. Then from the pancreas, that is alpha cell. Which one? That is alpha cell, which are present in the pancreas. The alpha cell secrete the hormone known as glucagon. The glucagon hormone break down the glucose and increase the glucose level in the blood. जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, तब पेंक्रियास के द्वारा, अल्फा सेल्स के द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है. ये ग्लूकागोन हार्मोन लीवर के अंदर स्टोर्ड ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करता है और अगेन बॉडी के अंदर ब्लड लेवल में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है. इसके अपोजिट में, इफ द लेवल ऑफ द ब्लड ग्लूकोज इंक्रीजेस, देन अगेन द पेंक्रियाटिक, नाउ द वर्क इज ऑफ बीटा सेल. बीटा सेल
secrete the hormone. The hormone is known as well-known hormone, insulin hormone. The hormone, insulin hormone, store the excess of the glucose in the fat cell, and now again the excess glucose decreases and the level is balanced. In this way, in both the time, not low and not high. भाई जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है तब अल्फा सेल ग्लूकागोन रिलीज करती है और वापस ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, और जब बॉडी के अंदर ब्लड लेवल में हाई लेवल हो जाता है ग्लूकोज का तब इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है और वो वापस उसको ग्लूकोज की मात्रा को कम कर देता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन बैलेंस रहता है। तो बॉडी में ना हार्मोन की मात्रा ज़्यादा होती है ना कम होती है। तो हम बॉडी के अंदर सबसे पहली एक ग्लैंड यहाँ पर छूट रही है जिसे मैं कहूँगी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। कौन सी? हाइपोथैलेमस ग्लैंड। ये हार्मोन, इस ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। क्या कहा मैंने? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है हाइपोथैलेमस को, जो इस पिट्यूटरी के ऊपर भी वर्क करती है। भाई जैसे हमारे अशोक गहलोत के ऊपर भी जो कंट्रोल है वो किसका है? हमारे मोदी जी का कंट्रोल है। तो हमारे जैसे अशोक गहलोत जो कंट्रोल कर रहे हैं राजस्थान का, पर उनके ऊपर भी तो कंट्रोल कर रहे हैं मोदी जी। तो उसी तरह पिट्यूटरी ग्लैंड को तो हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहेंगे हम लोग? इसे हम कहते हैं मास्टर ग्लैंड कहते हैं। पर इसके ऊपर भी जो कंट्रोल करती है वो करती है हमारी हाइपोथैलेमस ग्लैंड। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्लैंड को हम कहते हैं मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, ये जो ये हो गई आपकी हाइपोथैलेमस ग्लैंड हो गई जो हाइपोथैलेमस से अटैच, और ये हो गई आपकी जो दो लोब में डिवाइडेड है, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड को आप अच्छे से देख सकते हो, एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो स्टॉक्स के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। इस पिट्यूटरी को हम कह सकते हैं मटर के दाने के समान या ग्रेप्स की जैसी पिंक शेप की होती है, ब्रेन से लोकेटेड रहती है, कनेक्टेड किससे? हाइपोथैलेमस से है। इसके दो लोब से एंटीरियर और पोस्टीरियर, इसे हम मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। अब पिट्यूटरी से जो हार्मोन सेक्रीट किए जाते हैं उस हार्मोन्स को हम कहते हैं पिट्यूट्राइन हार्मोन। और ये हार्मोन कौन कौन से हैं? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग। इतने सारे हार्मोन मैडम एक साथ याद ही नहीं हुए। बेटा मैं इसका ट्रिक बताती हूँ। क्या है हमारा फ्लैट पीजी? कैसे पढ़ोगे? फ्लैट पीजी, फ्लैट पीजी। एफ से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, देखिए FLET और PG। पहले F फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, L से ल्यूटिनाइजिंग, A से एड्रीनोकॉर्टिकॉइड, T से थायराइड स्टिमुलेटिंग, P से प्रोलैक्टिन, G से ग्रोथ। नाम तो याद हो गए ना? बस और क्या चाहिए। और मेन जो हार्मोन आपको पढ़ना है वो है ग्रोथ हार्मोन। जब भी आपकी पिट्यूट्राइन हार्मोन की बात आती है उसमें मेन होता है ग्रोथ हार्मोन। हाँ भाई सबको चाहिए, बड़े लंबे लंबे होना है ना, तो वो हार्मोन कौन सा है? ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा भी हो गया, मैंने कहा, तो क्या हो गया? इसके द्वारा आपका गिगेंटिज्म, बहुत लंबे हो जाओगे। और अगर कम सेक्रेशन हो गया तो डार्फिज्म। हंसो मत भाई, रियलिटी है ये। और जब बैलेंस रहेगा ना, हार्मोन का सेक्रेशन ज़्यादा भी नहीं है कम भी नहीं है, तो नॉर्मल हाइट आपकी बन जाएगी। ये किसका द्वारा सेक्रेट किया गया? आपकी पिट्यूटरी के द्वारा सेक्रेट किया गया ग्रोथ हार्मोन है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्रोलैक्टिन क्या है? दैट इज डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड प्रोडक्शन ऑफ द मिल्क आफ्टर बर्थ। अगेन नेक्स्ट, थायराइड स्टिमुलेटिंग, इट वर्क ऑन द थायराइड टू स्टिमुलेट द हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड को बोलेगी। थायराइड नेक्स्ट ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, उसी तरह थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड को बोलेगी कि आप हार्मोन का सेक्रेशन स्टार्ट कर दीजिए। उसी तरह एड्रीनोकॉर्टिकॉइड हार्मोन, ये एड्रेनलिन कॉर्टेक्स से हार्मोन सेक्रेट करने के लिए बोलेगी।
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं FSH। ये FSH क्या करेगी, आपके ग्राफियन फॉलिकल को ओव्यूल को बनने के लिए बोलेगी कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, जो हम रिप्रोडक्शन में और पढ़ेंगे कि वहाँ पर काम करती है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ओव्यूल्स के ऊपर काम करती है। इसके द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन सेक्रेट किया जाता है और स्पर्म्स के बनने के लिए भी मेल के ऊपर काम किया जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अब जब ओव्यूल बन गए तो उनको बाहर भी तो निकालना है, तो उस समय ओव्यूलेशन करवाना या कॉर्पस लूटियम को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्टेरोन वर्क करता है। तो ये हमारे कहाँ से निकले, आपके एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। दूसरा है पोस्टीरियर लोब। पोस्टीरियर लोब के द्वारा दो हार्मोन निकाले जाते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये दोनों वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन बनते हाइपोथैलेमस ग्लैंड में। हाँ जी, वही मास्टर ग्लैंड, वहाँ बनते हैं और स्टोर किए जाते हैं पोस्टीरियर लोब, और पोस्टीरियर लोब से रिलीज कराए जाएंगे। जबकि एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन हैं वो एंटीरियर लोब में ही बनते हैं और वहीं से सेक्रेट किए जाते हैं, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटराइन जो हार्मोन है बनते हाइपोथैलेमस ग्लैंड में है और वहाँ से पोस्टीरियर लोब में स्टोर करते हैं और पोस्टीरियर से सेक्रेट किए जाते हैं। अब देखिए ये क्या करता है, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है। जो हेनेले का लूप था ना, वहाँ एक्सेस ऑफ वाटर को अब्जॉर्ब कर लेती है, यानी यूरिन कंसंट्रेटेड फॉर्म में आता है। ऑक्सीटोसिन ये चाइल्ड बर्थ के लिए ज़रूरी है, कॉन्ट्रैक्शन करता है यूट्रस का और बेबी का बर्थ होता है। अगली ग्लैंड आती है हमारी थायराइड ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो दो लोब में थी, मास्टर ग्लैंड थी, जिससे हमने फ्लैट पीजी वाले हार्मोन पढ़े हैं, और पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। थायराइड ग्लैंड है जो आप बहुत प्यारी सी, ये जो दिखाई दे रही है ना, यस ब्यूटीफुल, जिसे हम बटरफ्लाई शेप की, एच शेप की ग्लैंड कहते हैं, जो हमारे लायरेनेक्स के ऊपर रहती है, एच शेप की है। यहाँ से निकलने वाले हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन, पिट्यूटरी से निकलने वाला पिट्यूट्राइन, थायराइड से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन, ये मेटाबॉलिज्म के ऊपर वर्क करती है। व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म? यू नो वेरी वेल। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन, कैटाबॉलिज्म मीन्स ब्रेकडाउन, फूड का ब्रेकडाउन होना। एनाबॉलिज्म मीन्स बिल्डिंग मटेरियल। तो हमारी बॉडी में दोनों चीज़ें काम होती है, जैसे फूड का ब्रेकडाउन होना, एनर्जी निकालना, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और बॉडी के अंदर प्रोटीन, जो अमीनो एसिड से प्रोटीन बन रहे हैं, तो ये कैसा हो गया? एनाबॉलिज्म। तो दोनों को हम कंबाइंड रूप में कहते हैं मेटाबॉलिज्म। तो इस मेटाबॉलिज्म के ऊपर वर्क कौन करता है? थायरोक्सिन हार्मोन। इट ऑल्सो वर्क ऑन द कंट्रोल ऑफ द कैल्शियम आयन in the body and prevent the hypercalcemia. Another gland is parathyroid gland. ये जो आपको पिंक कलर की एच शेप की जो ग्लैंड अभी हमने पढ़ी है, जो थायराइड ग्लैंड थी, इस थायराइड ग्लैंड के अंदर ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, जी हाँ, थायराइड ग्लैंड के अंदर 4, ये है आपकी पैराथायराइड ग्लैंड। 4 होती है, हर एक लोब में 2 होती हैं, यानी टोटल 4 हो गई। अटैच टू द पोस्टीरियर थायराइड, और यहाँ से निकलने वाला हार्मोन पैराथार्मोन, और ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम लेवल को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट हाइपर कैल्शियमिया। फिर आती है हमारी थाइमस ग्लैंड। वेरी गुड, ये हमारे इम्यून सिस्टम के ऊपर कंट्रोल करती है। एंडोक्राइन ग्लैंड लिम्फेटिक ऑर्गन के ऊपर काम करती है। इट हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिसीज, यानी हमारी इम्यूनिटी के ऊपर वर्क करती है। और ये एक ग्लैंड ऐसी है जो जैसे जैसे हमारी प्यूबर्टी आती जाती है, धीरे धीरे हमारी ये छोटी होती जाती है और लास्ट एंड पे एक रिबन शेप पर बनकर रह जाती है। तो गिव वन एग्जांपल ऑफ ग्लैंड विच डिक्रीजेस एज द एजिंग, दैट इज द थाइमस ग्लैंड, और इट वर्क ऑन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो। इट इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टर्नम and in front of heart. Next gland is the adrenaline gland. You can see clearly that above of the kidney is this one,
जो हमारी किडनी के ऊपर हमें कैप शेप में दिखाई दे रही है, ये हमारी एड्रेनलिन ग्लैंड। इस ग्लैंड को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कोर्टेक्स और मेडुला पार्ट में। जो कोर्टेक्स पार्ट है वहाँ से हार्मोन सेक्रेट किए जाते हैं, उस हार्मोन को हम कहते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन। दे आर एंटी इन्फ्लेमेटरी। कोर्टेक्स से निकलने वाले जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हार्मोन है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स कॉर्टिकॉइड। मेल्स के अंदर जो है हार्मोन एंड्रोजन और फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन है, वो बनाने के लिए मदद करता है। मेडुला से निकलने वाला हार्मोन है एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसे हम साधारण भाषा में कह सकते हैं करो या मरो। अगर हमारे जैसे अभी बोल रखा है कि 10th के एग्ज़ाम अभी नहीं होंगे और फिर बोल दिया जाए कि 2 दिन बाद ही 10th के एग्ज़ाम है, तो आप क्या करोगे? या तो आप अच्छी सी तैयारी में जुड़ जाओगे, उसको फाइट करोगे, या बाइकआउट कर दोगे कि भाई मेरे को देना ही नहीं है एग्ज़ाम। करो या मरो की जो परिस्थिति आ जाती है, या अचानक से आपके सामने अभी आपकी टेबल के ऊपर आ गया शेर, है ना, तो फाइट करो या फ्लाइट करो। तो ये एड्रेनलिन या नॉन एड्रेनलिन इमरजेंसी हार्मोन है जो मेडुला से सेक्रेट किया जाता है। तो दो तरह के एड्रेनलिन ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कोर्टेक्स और मेडुला। कोर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड यानी मिनरल बैलेंस का काम करना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ब्लड लेवल के अंदर ग्लूकोज का मेंटेन करना, सेक्स कॉर्टिकॉइड जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके फीमेल के अंदर और एंड्रोजन हार्मोन मेल्स के अंदर कंट्रोल करता है, वो कोर्टेक्स। और मेडुला से एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, जिसे हम 3F हार्मोन या 4S हार्मोन भी कहते हैं। फिर गोनेड्स के द्वारा में जैसे फीमेल के गोनेड्स हैं तो ओवरी से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का सेक्रेट कराना, मेल के द्वारा एंड्रोजन का। एस्ट्रोजन हार्मोन किसका है? ओवरी से निकलता है, जो डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर के ऊपर काम करता है। और प्रोजेस्टेरोन है आपके मेंस्ट्रुअल सर्कल के ऊपर काम करता है और प्रेगनेंसी के ऊपर काम करता है। टेस्टोस्टेरोन है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। कौन से होते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर? जैसे बॉयज़ के अंदर है आवाज़ का भारी आना, दाढ़ी मूंछ का आना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है। और फीमेल के अंदर जैसे उनकी वॉइस का है, वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, ये सब है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं जिसके ऊपर काम करते हैं। फिर आती है हमारी पेंक्रियास। ये वही ग्लैंड है जिसके बारे में मैंने आपको कहा था मिक्स ग्लैंड है, बिकॉज इट वर्क फॉर एक्सोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज फॉर एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के लिए आपने देखा था पेंक्रियास वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था, पेंक्रियाटिक जूसेस निकाले जाते हैं, जैसे आपके लैक्टेज, माल्टेज, सुक्रेज, जो एंजाइम सेक्रेट करते हैं, जो फूड डाइजेशन में मदद करते हैं, तब तो ये काम करेगी एक्सोक्राइन का। जब हार्मोन सेक्रेट करेगी तब ये करेगी एंडोक्राइन ग्लैंड का, डकलेस ग्लैंड के तौर पर। ये जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्टमक के लूप के अंदर दिखाई दे रही है, और इनके अंदर आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस के द्वारा, भाई पेंक्रियास है, पेंक्रियास में दो तरह की सेल है, जैसे ये हो गई आपकी, ये तो थी आपकी एसिनी सेल, और इनके एसिनी के बीच में ये जो है आइलैंड की तरह जो दिखाई देते हैं, जिसे हम कहते हैं आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इनके द्वारा दो हार्मोन सेक्रेट किए जा रहे हैं। इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, मात्रा को घटा देता है, जो आपकी कॉमन डिसीज है। हर कोई बोलता है ना भाई हमें तो शुगर है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, जो शुगर लेवल कम नहीं कर पाते हैं। तो ये इंसुलिन है, शुगर लेवल को, ब्लड लेवल के अंदर शुगर लेवल को कम करता है। कुछ इन हार्मोन की इम्बैलेंस की वजह से प्रॉब्लम्स या डिसीज भी हो जाएगी। भाई डिसीज हम बॉडी में कब कहेंगे? जब हमारी बॉडी नॉर्मल वे में काम नहीं करेगी। भाई हार्मोन का ज़्यादा होना, अगर आप हद से ज़्यादा लंबे हो गए तब भी ये डिसीज़ है, अगर आप हद से ज़्यादा छोटे रह गए तब भी ये डिसीज़ है। उसी तरह आपके पिट्यूटरी का एक्सेस सेक्रीशन करना तब भी डिसीज़ है, लो सेक्रीशन करना तब भी डिसीज़ है। तो जब इनके अंदर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं तो हम पहली डिसीज़ पढ़ते हैं गिगैंटिज्म। हाइपर, जब भी आपका वर्ड हाइपर आए यानी होता है मोर सेक्रीशन। अगर ज़्यादा सेक्रीशन होगा
तो गिगेंटिज्म बहुत ज़्यादा लंबे, जिसे हम कहते हैं हिंदी में अतिकायता, ओवर ग्रोथ हो जाती है, लॉन्ग बोन्स बन जाती है, बहुत लंबा बन जाता है इंसान। या आपकी एक्रोमेगली तब होती है जब आप एक जो अडल्ट तो हो जाते हो, अडल्ट होने के बाद में अगर ये हार्मोन सेक्रीट होगा तो कहीं से आपका जैसे जबड़े हैं वो बाहर निकल रहे हैं, या बोन्स कहीं अजीब से ढंग से ग्रोथ कर रही है, टेढ़ा मेढ़ा, यानी ढंग से लंबापन भी है, बड़े भी हो रहे हो, पर वो हड्डियां कहीं से भी निकल रही हैं, तो जो आपकी उसे हम कहते हैं एक्रोमेगली। टू मच ग्रोथ ये तब होती है अडल्टहुड के बाद में, और जब अडल्टहुड में रहेगा तब होती है गिगेंटिज्म, और एक्रोमेगली अडल्टहुड के बाद में होती है। अगला डिसऑर्डर है आपकी एंडोक्राइन का हाइपो सेक्रीशन, यानी इसका कम सेक्रीशन हो रहा है पिट्यूटाइन हार्मोन का, तब कैसे हो जाएंगे हम, बोने रह जाएंगे। तो और इसके साथ साथ इसका सेक्सुअल इमेच्योरिटी भी आ जाती है। एंडोक्राइन फिर थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रीशन किया जाता है जो मेटाबॉलिज्म में वर्क करती है। अगर हाइपो सेक्रीशन यानी थायरोक्सिन का ज़्यादा सेक्रीशन हो रहा है तो ज़्यादा होगा तो ये मेटाबॉलिज्म भी ज़्यादा होगा, यानी बार बार जो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, एक तो डिसीज़ आपने सुनी होगी कॉमनली, दैट इज़ गोइटर डिसीज़, बहुत ही कॉमन डिसीज़ है, टीवी में ऐड आता है कि आयोडीन की कमी से गोइटर। भाई आयोडीन क्यों कहते हैं हम लोग, आयोडीन क्योंकि इस थायरोक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम कहते हैं। तो बार बार उसको थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेशन मिलेगा कि हार्मोन की कमी हो रही है, स्टिमुलेट करो, तो वो थायराइड ग्लैंड क्या होती है, फूल करके मोटी आ जाती है, तो उस डिसीज़ को हम कहते हैं गोइटर डिसीज़ कहा जाता है। ये ग्लैंड आपकी बड़ी सी हो जाएगी, गले में से आपको बाहर से लटकी हुई सी दिखाई देती है, और इसके अंदर वेट लॉस, बॉडी के अंदर क्या होगा, पीपल ऑफ दिस डिसीज लार्ज क्वांटिटी ऑफ द फूड, खाना तो वो ज़्यादा लेंगे पर फिर भी उनका बॉडी के अंदर फैट या वेट कम ही रहता है। फिर हाइपोसेक्रीशन यानी कम सेक्रीशन हो रहा है, कम सेक्रीशन क्या होगा, तो कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कम होगा, लैक मे बी ड्यू टू द लैक ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से आपकी कम बन रही है। इसके अंदर जो है ड्राई इची स्किन, ड्राई ब्रिटल हेयर, कंसप्शंस, मसल क्लैम्प्स एट नाइट, ये इसके सिम्टम्स हैं। फिर पैराथायरॉयड कौन, जो थायराइड के अंदर जो 4 आपको दिखे थे ना लोब्स, हर एक थायराइड के अंदर 2 यानी टोटल 4 पैराथायरॉयड से निकलने वाला पैराथायरोक्सिन हार्मोन, ये किस पे काम करता है, कैल्शियम लेवल पर। हाइपोसेक्रीशन यानी कम बन रहा है, डिक्रीज कैल्शियम लेवल एंड अफेक्ट द फंक्शन ऑफ नर्व्स, ये नर्व्स के फंक्शन को भी इफेक्ट करता है। पर्सन डाई ऑफ द स्नैप्स इन द रेस्पिरेटरी मसल्स। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कर देना, बहुत ही शॉर्ट आपको मेन पॉइंट में आपके सामने लेके आई हूँ इन हार्मोन से रिलेटेड। अगर आपने ये टॉपिक बस यही वाला पढ़ लिया है तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इवन बुक्स के अंदर बहुत डिटेल में दे रखा है, मैंने सारा टॉपिक छांट करके लेके आई हूँ, और 10th क्लास 12th क्लास दोनों क्लासेस आप लोग इसे अच्छे से देख लेना, विद डायग्राम है, आप लोग अच्छे से समझ लेना। और समझ में आ गया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेटा मेरे को इसी से पता चलेगा कि आपको समझ में आ गया है। और एक बार और जब ये एंड हो जाए वीडियो तो वापस एक बार आप लोग देख लेना। अगली आती है आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड, यही बेटा जो एग्ज़ाम वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि हाँ करो या मरो, भाग जाओ, 3F 4S हार्मोन, ये है आपकी एड्रेनलिन ग्लैंड है। इसको 2 पार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिवाइडेड है, दैट इज कोर्टेक्स एंड मेडुला, आपको अच्छे से डायग्राम में दिखाई दे रहा है। फर्स्ट डिसीज है कुशिंग सिम्टम्स, हाइपोसेक्रीशन, अगर ज़्यादा सेक्रीशन हो गया तो कुशिंग डिसीज हो जाती है, मे बी एड्रेनलिन कॉर्टेक्स, जिसे हम ट्यूमर भी कहते हैं, जिसके द्वारा हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर होगा, मसल में वीकनेस हो जाएगी, ओबेसिटी मोटापा आ जाएगा, एंड पुअर हीलिंग कैपेसिटी पुअर हो जाएगी, एंड हिरोस्ट्रीम एक्सेस ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं,
और मूव्स हो जाते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, ये सारा हाइपर सेक्रीशन। अगर एड्रेनलिन ग्लैंड का कम सेक्रीशन हो रहा है तो क्या होगा, एडिसन डिसीज़ है। ये 12th में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, व्हाट इज एडिशन डिसीज, हाइपोसेक्रीशन की वजह से होता है। बॉन्जिंग ऑन स्किन, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरटेंशन हो जाता है। अगला हमारे आता है पेंक्रियास के द्वारा, बहुत ही अच्छी आपने ये सुनी भी होगी, ये है डिसीज डायबिटीज मेलिटस। एक डिसीज और होती है डायबिटीज इंसिपिटस, कौन सी डिसीज है, इंसिपिटस। डायबिटीज इंसिपिटस होती है वो एड्रेनलिन की वजह से, जिसमें यूरिनेशन ज़्यादा होता है वो एड्रेनलिन जो है की वजह से होती है, जबकि डायबिटीज़ मेलिटस जिसे आप शुगर कहते हो, ये शुगर वाली है, ये डायबिटीज़ मेलिटस होती है जो पेंक्रियास की वजह से होती है। इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से होती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या होगा बेटा, हाँ कॉमनली हर घर में एक आध मिल जाता है आपको, ये वही वाली है डायबिटीज़ मेलिटस वाली, डिक्रीज इंसुलिन हार्मोन। जब इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी यानी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल कम करने वाला कोई नहीं है। इंसुलिन नॉन सिम्टम्स क्या होगा, पॉलीयूरिया, बार बार ज़्यादा यूरिन का होना, पॉलीफेसिया, पॉलीडिप्सिया, वेट का लॉस होना, और बल्बर्ड विजन, आपको धुंधला सा दिखाई देना, और पॉसिबल डायबिटिक कोमा भी इसके अंदर आ जाता है। इफ़ नॉट ट्रीटेड एक्सेस ग्लूकोज, अगर नहीं ट्रीट करोगे तो बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि इंसुलिन तो है ही नहीं जो उसको कम करेगा, और यही आपकी यूरिन के साथ भी सेक्रीट होकर आता है, इसीलिए यूरिन टेस्ट किया जाता है, क्योंकि यूरिन के अंदर भी ग्लूकोज आना शुरू कर देता है। सिंस ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल फॉर द सेलुलर ऑक्सीडेशन, सो स्टार्ट टू बर्न प्रोटीन एंड फैट। तो ये तो थे हमारे सारी ग्लैंड और ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन, जिसके अंदर हमने कौन कौन सी पढ़ी, आपकी थायराइड ग्लैंड, और उसके बाद थायराइड के बाद हमने पढ़ी आपकी पैराथायराइड। सबसे पहले मास्टर ग्लैंड थी हाइपोथैलेमस, फिर पिट्यूटरी, फिर थायराइड, फिर पैराथायराइड, फिर थाइमस के बाद हमने एड्रेनलिन पढ़ी, फिर हमने पेंक्रियास पढ़ी जो कि हमारी मिक्स ग्लैंड है। समझ में आ गया? लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ये आपको समझ में नहीं आया है, कोई भी ग्लैंड आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे को कमेंट कर दीजिए, और किसी एक ग्लैंड के ऊपर आपको ज़्यादा पढ़ना है तो वो भी मेरे को कमेंट करके बता दीजिए, ताकि मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको नेक्स्ट के अंदर प्रोवाइड कर सकूँ।